supply chain disruption. The address highlighted historic tax reform, the exemption of income tax up to 12 lakhs, and next generation GST reform, which have saved citizens 1 lakh crore. Inflation, which used to about 9%, and one stage even crossed double digit during the UPA regime, fell to a remarkable 4.6% in the fiscal year of 2024-25. Earlier government used crisis as excuses. This government used crisis as a catalyst. Honorable Speaker, sir, Digital India is not about apps. It is about empowerment. Speaker, sir, 44 lakhs crore transferred directly through DBT, and 25 crores people lifted out of multidimensional poverty, and nearly half of the global digital transaction happening in India, and UPI becoming a global benchmark. Earlier, file moved slowly, money leaked fast. Now, under NDA regime, file moved digitally, money reaches beneficiary directly. Honorable Speaker, sir, social justice for this government is not about slogan. It is about dignity, delivery, and direct access. For employment and development in rural area, a law named Viksit Bharat GRAM-G has been enacted. This new law will ensure 125 days of guaranteed employment in villages. At the same time, it will ensure stopping corruption and leakages, for which government has been making efforts since long. More than 4 crores Pakka houses have been constructed for the poor, giving not just shelter, but security and self-respect. More than 12.5 crores households through the Jal Jeevan Mission now have tap water connection, transforming health, hygiene, and daily lives of women. Sanitation coverage has been expanded on an unprecedented scale, ensuring that dignity is no longer a privilege. Through Ayushman Bharat, crores of economically vulnerable citizens now have access to free quality health care and without fear of catastrophic expenditure. The focus on the marginalized, whether through the PM Janman scheme for our tribal brothers and sisters or the establishment of Ekalabya Model Residential School, demonstrate that our democracy is delivering for those who need it the most. Equally inspiring is the emphasis on Nari Shakti with the empowerment of over 2 crore Lakhpati Didis, women from self-help group who have crossed the thresholds of poverty to become symbol of prosperity. Honorable Speaker, sir, at this juncture, I am compelled to contrast the era of transformation we witness today and with the dark decades of despair that preceded it during the UPA regime. During the previous Congress regime, our nation endured an era defined by scam and scandal, be it the 2G Spectrum scam, the coal scam, and the Commonwealth Games scam. This episode drained the exchequer and tarnished India's global image. Corruption was rampant. Middlemen dictated the destiny of the poor. In sharp contrast today, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, India has entered an era of integrity and empowerment. Honorable Speaker, sir, as a proud son of Northeast, I now stand before you to recount the remarkable journey of transformation that our nation, particularly in the Northern region, has witnessed over the last 11 years under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Every morning, India awakens in dawn, a small town in the northeast that greets the nation with its first sunrise. Yet, for decades, this very region remained in darkness, neglected and ignored, especially by successive Congress governments that ruled at the center for nearly 6 decades. Earlier, Congress party always used to take the tea community in Assam for granted. They were only honored with pair of dhoti and kambal, that is blanket.
But our beloved Prime Minister Modi ji has given highest respect to the emotion and sentiment of our brother and sister of tea garden. साई बागान की हमारे मजदूर भाइयों को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से इज्जत दी है, जिस हिसाब से उनके विकास के लिए मदद की है, ये ऐतिहासिक कदम है और इसलिए हमेशा हमारे देश इस बातों के लिए याद रखेगा, क्योंकि जो व्यक्ति गरीबों के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, जो मेहनत करते हैं, जो गरीबों के लिए कार्यक्रम लाते हैं और गरीबों के लिए सामाजिक न्याय के लिए मजबूत कदम उठाते हैं, वही है मेसिया ऑफ द पुअर पीपल. This is what Honorable Prime Minister is doing in the last 11 years for the people of Northeast and people of the country. Today, who thought that one day the narrow roads within Tea Garden will be constructed, pregnant women will be receiving ex gracias. Today, model schools have been constructed under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Bank account have been opened for every tea garden worker for direct benefit transfer. Earlier, continuing the colonial practice during the Congress regime, my dear workers have said that Dharmaha Jhukek Jaboi. Sir, during that time this tradition ऐसा था कि तनख्वाह लेने के लिए ऐसे झुकना पड़ता था, और आज हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना के जरिए बैंक का अकाउंट असम के अंदर 8 लाख हमारे साई बागान के मजदूर भाइयों के लिए वो व्यवस्था की गई है, जिसके वजह से आज उनकी तनख्वाह थ्रू डीबीटी के जरिए 100% इज्जत से मिलता है. Earlier, continuing the colonial practice during the Congress regime, they had to suffer a lot. Today, particularly, we all know that the more than 12 crores tribals living in the country, and Honorable Prime Minister, for the first time in the history of 70 years of Indian independence, in memory of the great Bhagavan Birsa Munda, the Janajati Gaurav Divas has been celebrated across the country. So this is a great honor to the tribal people in the country. And that is how Honorable Prime Minister is always working hard, day and night, for the upliftment of the status of the backward people in the country. And I believe that is why he has been successful lifting the more than 25 crores poor people from the poverty line. So this is the historic milestone, and he has created because of his good governance, because of his honesty, because of his commitment, because of his Rashtra Bhakti. Speaker, sir, the Honorable Prime Minister has rediscovered the unsung hero of our country, whose effort in shaping our nation's destiny has been totally forgotten during Congress regime. During our time, the nationwide celebration of Bhagavan Birsa Munda birth anniversary has started. Honorable Speaker, sir, unlike BJP, for Congress, development is always measured against electoral arithmetic. Because of the Northeast carried fewer parliamentary seats, Congress used to cast aside aspiration of the Northeastern region. As a result, since independence, the people of the Northeast were compelled to fight for their identity, for their existence, and for their survival, a struggle born of indifference and apathy of successive Congress governments who ruled the country for over 6 decades. Honorable Sir, we all know that during the partition era, several top Congress leaders, most notably Jawaharlal Nehru, initially accepted the cabinet mission plan of 1946, which proposed grouping this region with East Bengal, later East Pakistan, disregarding the strong opposition of the people here who feared losing their distinct identity. It was Mahatma Gandhi who stood firm
urging Gopinath Bordole to launch a satyagraha to safeguard Assam interests. That episode left a deep wound in the heart of our people, a wound that successive Congress government did little to heal. This neglect was felt most painfully during the 1962 India-China war, when our people stood exposed and abandoned. On November 28th, following the fall of Bomdila, Prime Minister Nehru addressed the nation over All India Radio, saying his heart went out to the people of Assam. This is how Congress treated the people of Assam, and this is the Congress who always look for power, not for the people. So that has always been, this is the Congress dirty design, cruelty, and that is how Congress put the entire most potential zone of the country under darkness. But to our people, those words symbolize not empathy but indifference, reinforcing the painful belief that the Northeast was left to fend for itself. In the mid-1950s, the people of Assam were compelled to launch a massive movement against center's indifference to their demand for an oil refinery. आपको सर मैं बताऊं, हर चीजों के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आंदोलन करना पड़ता था, सड़क में आना पड़ता था, अपने हक के लिए और अपने पहचान को जिंदा रखने के लिए, अपने जमीन जायदाद और अपने जो भी इतिहास को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे लोगों को विशेष रूप से कभी भी उन्होंने इंसाफ नहीं दी और हमारे लोगों को मजबूर किया सड़क पे आने के लिए, आंदोलन करने के लिए। और आंदोलन करते करते अपने जो भी इंसाफ के लिए उन्होंने आंदोलन की है वो इंसाफ तो दे नहीं पाया, इसके बदले गोली के जरिए कई लोगों को उन्हें हत्या की है। कांग्रेस का काला जो इतिहास है, ये इतिहास नॉर्थ ईस्ट का लोग, भारत का लोग कभी भूलेगा नहीं। वो कभी भी देशवासियों को, हमारी गरीब जनताओं के लिए वो कभी इंसाफ नहीं करते। सब उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के जरिए देश के खजाना लूटने का उनका जो स्वभाव है, इसके वजह से आज उनके कार्यकाल में 55 साल से अधिक काल उन्होंने राज किया, उसके बावजूद उन्होंने देश को आगे बढ़ा नहीं पाया, देश के विकास के लिए उन्होंने कदम नहीं उठा पाया। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भक्ति भावनाओं से सेवा की है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देशवासियों को कहा कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में मैं देशवासियों को मैं सेवा करूंगा। और आज ये साबित हुई, पिछले 11 साल उन्होंने निरंतर मेहनत की, कठोर परिश्रम की, ईमानदारी से सही नीति अपनाया, सही परियोजना उन्होंने हाथ में लिया और सही सेवा करने के लिए सुशासन व्यवस्था उन्होंने लागू किया, और जिसकी वजह से आज सबको इंसाफ मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको आज अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सुनहरा मौका मिले। यही है मोदी जी का दिल, देश के लिए भक्ति भावनाओं से जो देश सेवा करते हैं उसी को कहता है देशभक्त। और आज मोदी जी ने ये साबित किया, नई पीढ़ियों को भी आज देश सेवा करने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। और मोदी जी की जो भी कुशल नेतृत्व ने आज देशवासियों को विशेष रूप से आत्मविश्वास जगाया, और ये देश मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से विकसित भारत बनने जा रहा है। ये निश्चित है, हर कार्यक्रम आज जिस हिसाब से सफल हो रहा है आप लोगों ने खुद देखी है, और आज कांग्रेस का हमारे जो भी माननीय सांसदगण बैठा है उनको भी महसूस होना चाहिए। आप मोदी जी की इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का साथ आप जुड़ जाइए। आपके मन में जो घृणा, आपके मन में जो नफरत है, ये नफरत से आप कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकते, और आपका कभी भी जनता आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो भी कला इतिहास है, इस इतिहास को कभी जनता भूलेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय हमारे सभापति महोदय को आज मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज देश के हर वर्गों के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, जो कार्यक्रम रचना की गई है, सुशासन व्यवस्था के जरिए हर कार्यक्रम को सही समय पर लागू होने की वजह से सबको इंसाफ मिला है। और आज विद्यार्थी हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो
या हमारे मजदूर हो, सभी वर्गों को आज जिस हिसाब से अपने जीवन को सजाने के लिए मौका मिले है, इसके वजह से आज देश शक्तिशाली हुई है। आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, चाहे डिफेंस सेक्टर को ले लीजिए, चाहे पेट्रोलियम सेक्टर, चाहे शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे खेल विभाग ले लीजिए, हर विभाग में जिस हिसाब से देश तरक्की करने लगा है, और खास करके मोदी जी ने साबित किया, कठोर परिश्रम अगर ईमानदारी से किया जाए, सही नीति, सही नियत अगर आप बना सकता है, तो निश्चित रूप से आपने जो लक्ष्य तय किया है, इस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। और ये साबित हुई है। आज हमारे देशवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूं, इसलिए मुझे मोदी जी के नेतृत्व में देश सेवा करने के लिए मौका मिला है। पहले पॉलिटिक्स के सिलसिले में लोगों का जो गलतफहमी थी, खास करके पॉलिटिक्स में जो भी आता है वो वादा करते हैं, वादा नहीं निभाती है। लेकिन मोदी जी ने कहा, मैं जो कहूंगा उसको करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया है। आप लोगों को सीखना चाहिए, सिर्फ नफरत भावना फैलाने से नहीं होगा। अगर आप भारत को भक्ति करते हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे विकास यात्रा में, जुड़ जाइए। इसलिए परम आदरणीय सभापति महोदय, हमारे आज खास करके मैं पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की मंत्री होने के नाते एक बात तो मुझे कहना ही होगा कि उसी मंत्रालय को 2014 तक कांग्रेस सरकार ने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। इसकी वजह से पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में बचे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को वो पढ़ नहीं पाया, और अगर इसको पढ़ लिया होता, अनुसंधान और सही उसको अगर अध्ययन किया होता, तो मुझे लगता है कि वो भी आज जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग हम लोगों ने कार्यक्रम रचना की है, वो भी कार्यक्रम ले पाते और देश का विकास होते। लेकिन उन्होंने इस विभाग को कोष मान्यता नहीं दिया, और पिछले 11 साल के अंदर जो भी व्यवस्था खड़ा की गई है, सागरमाला प्रोग्राम हो, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हो, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 हो, इस विजन के जरिए उस विजन को हम कैसे जमीनी हकीकत से जोड़े, और विकास यात्रा में इस विजन के जरिए कैसे देश को हम विशेष रूप से सहयोग करें। मुझे लगता है इसके लिए आज आपने खुद देखी है कि मैरीटाइम नेशन होने के नाते परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य तय की है, अगले 2047 तक भारत विश्व का टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बनेगा। और इसके लिए मैरीटाइम वीक जो भी आयोजन की थी, और इसके जरिए लक्ष्य तय की गई है, अगले 25 साल के अंदर हमारे इस सेक्टर में 80 लाख करोड़ का निवेश होगा, 80 लाख करोड़। दिस इज द पावरफुल विजन डेवलप्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऐसा पावरफुल विजन अगर आप बनाया होता तो आप भी 55 साल में बहुत कुछ कर सकते थे। आप विफल हुई, लोगों ने इसलिए आप लोग को इतिहास समझा। अभी आप लोगों को इतिहास समझा, आपको अभी किसी भी प्रदेश में आपका जगह नहीं रहा। तो इसलिए परम आदरणीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में, परम आदरणीय सभापति महोदय, हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे असम के अंदर, अरुणाचल के अंदर, आप 8 प्रदेश को आप लोग एक बार जाइए, खुद देख के आइए आपके कार्यकाल में क्या हालत थे और आज क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। और आज इसलिए 70 बार से अधिक परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट दौरा किया है। मोर देन 70 टाइम्स ही हैज क्रिएटेड हिस्ट्री in the 70 years of Indian independence, but you have failed to do so, and you have given a person from Assam to the post of prime ministership for 10 years. But during that time,
You have totally failed to deliver goods to the people. But in return, Honorable Prime Minister, in the brief period of 11 years, he could able to give everything. Biggest fertilizer plant, biggest refinery, biggest IM and AIMS and hospital, industry, and all kind of support. Even he has given highest respect to the culture of Assam and Northeast. Highest respect. आप नॉर्थ ईस्ट का गामोसा को ले लीजिए, साथ साथ में हमारे नॉर्थ, हाँ आपने तो गामसा तो फेंक दिया आपका नेता ने, आपको समझ में नहीं आया। ये हमारे गामसा में आप सुन लीजिए, इतिहास को स्मरण कीजिए। जब महात्मा जी असम गए थे तो उन्हें गामोसा देख के उन्होंने कहा था, इस गामोसा में हमारी असमिया का जो महिला अपना सपना को रचना करते हैं। तो आपने इतने बड़े एक वस्त्र को आपने कभी भी आपने पढ़ नहीं पाया, सीख नहीं पाया, क्योंकि आपने हमारे विरासत के बारे में आपका कुछ भी ख्याल नहीं है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विकास भी विरासत भी। आपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, अपने पुरखों को भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले देश के लिए जो मेहनत की है, जो त्याग की है, उनको अगर आप भूल गए तो आप भविष्य कभी निर्माण नहीं बना सकते, कभी भविष्य आपको आप बढ़िया से नहीं सजा सकते। तो इसलिए आज जो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कदम उठाए हैं, डॉक्टर भूपेन हजारिका सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया का एक बड़े कलाकार है। अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एवरीवेयर ही इज हाईली रेस्पेक्टेड। लेकिन भूपेन दा को कभी भी उन्होंने इज्जत नहीं दिया। बार बार असम में लोगों ने कहा भारत रत्न दीजिए, भारत रत्न दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने सुना नहीं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप बिना बोले, उन्होंने खुद ने कहा भूपेन दा को भारत रत्न देना चाहिए। यही है बीजेपी सरकार की सद्भावना और इज्जत देश के लिए। असम हो या नॉर्थ ईस्ट हो, देश का अभिन्न अंग है और भारत को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए असम और नॉर्थ ईस्ट की जवानों ने कई बलिदान दी है। और इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी असम का जो भी वहाँ योगदान है, जो भी वहाँ कंट्रीब्यूशन है, ये आप सबको अध्ययन करना चाहिए, इतिहास को स्मरण करना चाहिए। तो ये ऐसा एक प्रांत, जिस प्रांत को आप तो पहचान नहीं पाया, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा ये देश के अस्थलस भी है, देश के अस्थलस भी है। और अगर असम नॉर्थ ईस्ट विकास होगा तो देश विकास होगा। नॉर्थ ईस्ट अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट की सभी 5 करोड़ जनता आप मोदी जी को अपना खुद का मानता है। और आज मोदी जी ने अपने कठोर परिश्रम और ईमानदारी से जो भी काम की है देश में, इसलिए आज देश का सबसे प्रिय नेता बन चुका है। और दुनिया में भारत का जो नाम जिस हिसाब से रोशन की गई है, दुनिया में पहले विकसित देश भारत का राष्ट्रप्रधान से बड़े इज्जत से बात नहीं करते थे, लेकिन आज किसी भी मंच में बोलिए, अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, any part of the world, he is highly respected leader in the world, and he can bring solution to any kind of global situation. So this is the power of Modi's vision. This is the power of his leadership. This is the power of his commitment. This is the power of his dedication. This is the power of his devotion, and this is the power of his decency and discipline of life. So I believe अगले दिनों के लिए हमारे नई पीढ़ी, विशेष रूप से हमारे भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली विकसित देश बनाने के लिए अगले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में जोड़ने के लिए सब लोगों ने अभी मन बनाया है। देश का हर नागरिक का आज जिस हिसाब से आत्मविश्वास दुगुना हुई है, तो मुझे लगता है कि ये दिन दूर नहीं जब भारत
दुनिया का सबसे पावरफुल विकसित राष्ट्र बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। आप देख लीजिए शिपिंग सेक्टर में पहले क्या होते थे। शिपिंग सेक्टर में अपना जहाज ना होने के वजह से हमको विदेश का जहाज लाना पड़ता था और हर साल 6 लाख करोड़ हमको पैसा उनको देना पड़ता था। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि देश की इतने बड़े हमारी रकम हम जब विदेशी कंपनी को देते हैं तो देश का कितना नुकसान होता है। इन बातों को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीर रूप से उपलब्धि किया। हम दुनिया को बिकेंगे, हम खरीदेंगे नहीं। ऐसा एक शक्तिशाली मन बनाया और उन्होंने इसके लिए बजट में पॉलिसी अनाउंस किया और आज स्पष्ट हो गया और काल ये भी कहा गया है कि कंटेनर देश में ही बनेगा, हम कंटेनर खरीदेंगे नहीं। तो हर चीजों में, चाहे डिफेंस प्रोडक्ट हो, चाहे अदर प्रोडक्ट हो, मोबाइल हो, व्हीकल हो, इन एवरी सेक्टर्स इंडिया इज गोइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट स्पष्ट है। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आज परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने जो भी अभिभाषण यहाँ पेश की है, आप सबको स्वागत करना चाहिए, मिल करके स्वागत करना चाहिए। क्योंकि ये जो उन्होंने जो भी अभिभाषण दी है, इस अभिभाषण में वो सभी है, विकास के सभी है, स्पष्ट हुई है देश के विकास कैसे हुई है, इसका एक तस्वीर उन्होंने यहाँ पेश की है। स्पष्ट है, ये मान लेना चाहिए। आप विपक्ष में हो तो क्या हो, देश के लिए आपको भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। होता है कि नहीं, क्यों नहीं होते? आप मन बनाइए और आप जो भी आप देखिए, एक बात मैं कहूं, घृणा सुन लीजिए माननीय सभापति महोदय, घृणा, कपट, अहंग, दुश्मनी, भेदभावना ये जहर है, जहर। इसको लेके मत घूमिए, इसके बदले आप बनिए सकारात्मक। सर्बानंद सोनेवाल जी, एक मिनट। प्रसून बनर्जी जी, मिस्टर प्रसून बनर्जी, मिस्टर प्रसून बनर्जी, मिस्टर प्रसून बनर्जी, I think so it is not fair that you are standing opposite to the chair. What you are doing? You are sitting. If you want to make any gossip, so I think so kindly you go outside. माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इस पवित्र सदन में जो भी सदस्य है, चाहे हमारे तिजोरी बेंच में हो या विपक्ष में हो, देश के विकास के सिलसिले में सबको एक साथ जुड़ जाना चाहिए। गंभीर रूप से उपलब्धि किया। देखिए, असम का प्रतिनिधि कैसे रहेंगे? अब तो असम में ऑनेस्टली स्पीकिंग कांग्रेस का कोई जगह ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पे कोई कांग्रेस का जगह ही नहीं है। उनका जो भी आपको करना था 55 साल में किया है, आपका चेहरा उभर के आया है। आपको असम और नॉर्थ ईस्ट का लोग शुभचिंतक नहीं मानते, दिल से निकाल दिया है। आप लोगों ने बहुत नाइंसाफी की है, बहुत अपना अन्याय की है और नॉर्थ ईस्ट का खजाना को लूटा है आपने। You have looted the property of the entire North East. That is why you have deprived the people's right, and that is why you are always rejected, not accepted. You will always be rejected. That is clear. No point putting your effort in the northern state in any election. Honorable Prime Minister is so lovable personality, not only in Northeast, but entire country, entire world. So that is the very clear indication that you should all come forward and join hands in the development yatra. और मैं इसी शब्दों का साथ माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने जो भी अभिभाषण पेश की थी, मैं इनकी समर्थन के लिए सब लोगों से आग्रह करता हूं, आप भी साथ दें। इसी शब्दों का साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।